وائرس نے پھیلنا ہے, وائرس پھیلے گی. یہ جو ہمارے اموات بڑھ رہے ہیں, یہ میں آپ کو پہلے دن کہہ دیا تھا, جب بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ پھیلے گی, یہ بڑھیں گے. لاک ڈاؤن ایک وائرس کا یہ علاج نہیں ہے, یہ صرف ایک وائرس جو تیزی سے جب لوگ جمع ہوتے ہیں پھیلتی ہے. جب تک کہ ویکسین نہیں نکلے گی یہ کرونا وائرس, تو اس کے ساتھ ہمیں گزارا کرنا ہے. کرونا کے ساتھ گزارا تو کرنا ہے. السلام علیکم, ویری گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو. آپ دیکھ رہے ہیں پس پردہ اور میں ہوں نادیہ نقی. رائزنگ کرونا کیسز ان پاکستان, 76,000 سے زیادہ متاثرہ کیسز اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں. 1600 سے زیادہ اموات پاکستان میں ہو چکی ہیں اور پچھلے 24 گھنٹوں کا بھی ڈیتھ ٹول بتایا جا رہا ہے 70 کے قریب ہے, جبکہ مور اینڈ مور کیسز اب سامنے آ رہے ہیں. ٹوٹل 24 آورز کے اندر یعنی پچھلے 24 گھنٹوں میں یہ بتاتی چلوں آپ کو کہ 16,548 ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے ہیں پورے پاکستان میں. اب آپ نے کل جو NCOC کی میٹنگ کے بعد وزیر اعظم پاکستان میں سب کو اعتماد میں لیا تھا پوری قوم کو, اور NCOC کے اندر آپ جانتے ہیں کہ تمام وزرائے اعلیٰ شرکت کرتے ہیں. مزید اکنامک ایکٹیویٹیز کو اوپن کیا گیا, بازاروں کی ٹائمنگز کو اور ریلیکس کر کے شام 7 بجے تک رکھا گیا. آج سندھ حکومت نے بھی ایک پریس کانفرنس کی جس میں بتایا گیا کہ کراچی شہر کے اندر چلنے والی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے یعنی بسز ہیں ان کو SOPs کے ساتھ کل سے اوپن کیا جا رہا ہے. آن لائن ٹرانسپورٹ بھی اوپن کر دی جائے گی, لیکن ابھی جو صوبوں سے پوری بسز کا پورا ایک نیٹ ورک چلتا ہے ایک صوبے سے دوسرے صوبے, اس کو ابھی نہیں کھولا گیا ہے. بہرحال زندگی بھی چلے گی, معیشت کا پہیہ چلانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ جو کیسز بڑھ رہے ہیں اور بار بار حکومت بتا رہی ہے کہ اب مقامی منتقلی 92% تک پہنچ چکی ہے. آج یاسمین راشد صاحبہ جو کہ وزیر صحت پنجاب ہے, انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ پنجاب میں سب سے زیادہ کیسز لاہور اور راولپنڈی میں ہیں. سیاسی منظر نامے پر اب سے کچھ دیر پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کو نیب کی ٹیم پہنچی تھی گرفتار کرنے کے لیے. اس کے بعد نون لیگ کے رہنماؤں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے حکومت کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا. اس وقت میں اس پر بات نہیں کروں گی, البتہ اس بارے ضرور بات کی جانی چاہیے کہ جہاں ہم اور حکومت بار بار یہ کہتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے, فاصلہ رکھا جائے, مجمع نہ اکٹھے ہوں, وہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام سیاسی ایکٹیویٹیز کے اندر ایک جمع غفیر جمع ہوا تھا. ماسک ضرور پہنے تھے لیکن کوئی بھی سماجی فاصلے نہیں رکھے گئے تھے, فزیکل فاصلے I'd rather say. بہرحال آج کے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ مقامی منتقلی کو کس طرح سے روکنا چاہیے, کیا ہمارے حکومت کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے, اور اگر ہے تو اس کے اوپر جو اس وقت عمل درآمد ہو رہا ہے کیا وہ بہتر رہے گا. آج ہم نے اپنے پروگرام میں 2 کرونا پازیٹیو پیشنٹس کو دعوت دی ہے. ایک وہ جو کہ خود ڈاکٹر ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس جب کراچی میں ڈاکٹرز نے کی تھی, ان میں سے ایک ڈاکٹر بڑے نامور ڈاکٹر ہیں, ہمارے اس پروگرام میں بھی شریک ہو چکے ہیں, جنہوں نے پہلے ہی یہ کہا تھا کہ ہمارے ہاں کیسز بڑھیں گے اگر ہم نے سختی سے لاک ڈاؤن پر عمل درآمد نہ کیا. ڈاکٹر سعد خالد نیاز, لیڈنگ گیسٹرو-انٹرولوجسٹ آف پاکستان, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ان کے ساتھ ساتھ میری بہت ہی میں کہوں گی ڈیئر کولیگ بھی ہیں, ایک جرنلسٹ بھی ہیں, تنزیلہ مظہر صاحبہ, جنہوں نے ویسے تو خواتین کے ہراسمنٹ کے ایشوز اور خود اس ہراسمنٹ کو فیس کرتے ہوئے آج بھی کورٹ کے کیسز جو ہیں وہ فیس کر رہی ہیں, لیکن شی از اے ویری اسٹرانگ پرسن ماشاءاللہ, اور آج جو ہے وہ کووڈ پازیٹیو ہیں اور جس طرح سے وہ اس سے بھی ڈیل کر رہی ہیں, یقیناً سلوٹ ٹو یو. آپ دونوں کو بلانے کا مقصد یہی ہے کہ جو ابہام ہے لوگوں کے اندر کہ کرونا نہیں ایگزسٹ کرتا, ان کا یہ ابہام بھی دور کیا جائے, اور دوسری طرف جو احتیاطی تدابیر ہیں جو پورے آپ سمجھتے ہیں اب ہونی چاہیے ہیں, کیونکہ آپ دونوں جو کہ انلائٹنڈ لوگ ہیں, جو سمجھتے تھے کہ کیا پریکاشنز لینے چاہیے اور لے بھی رہے تھے, اس کے باوجود آپ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں, تو بقیہ لوگ جو کہ احتیاطی تدابیر فالو نہیں کرتے وہ کتنے خطرے میں ہیں. میرے ساتھ پنجاب اسمبلی کی ممبر عظمیٰ کاردار صاحبہ, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق, لاہور میں تشریف فرما ہے. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تنزیلہ, آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی. سب سے پہلے فرمائیے گا آپ کی طبیعت کیسی ہے, کیا آپ کے کوئی سمٹمز تھے جس کی وجہ سے آپ نے ٹیسٹ کرایا, اور کیا وہ سمٹمز دور ہو گئے؟ تھینک یو سو مچ نادیہ. یہ طبیعت ابھی میری بہت بہتر ہے, لیکن جب میں بیمار ہونا شروع ہوئی تھی تو طبیعت میری کافی خراب رہی. 4 دن مجھے بہت زیادہ بخار تھا, پورے جسم میں درد بہت زیادہ تھا, وچ آئی فیلٹ واز ان یوزول. ایک تو ظاہری بات ہے جب سے کورونا آیا ہے تب سے ہم سارے ہی تھوڑا سا سسپیکٹ کر رہے تھے ذرا سا کچھ ہو جائے,
لیکن پھر جب میں نے غور کیا تو مجھے لگا کہ نہیں یہ عام سا بخار نہیں ہے, سو آئی شوڈ گیٹ مائی ٹیسٹ ڈن. پھر میں ایک میٹنگ میں اسلام آباد سے ہو کے گئی تھی, تو وہاں سے بھی مجھے پتا چلا کہ وہاں پہ ایک دو لوگ جو ہیں دے ٹیسٹڈ پازیٹیو. تو پھر مجھے بالکل شور ہو گیا کہ بھئی میں جو ہوں وہ افیکٹڈ ہوں. دو آئی واز ٹیکنگ پریکاشنز, ہم باہر جاتے ہوئے ماسک وغیرہ بھی پہن رہے تھے, بلکہ ٹو بی آنیسٹ جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے تب سے میں نے اپنی جو موومنٹ ہے وہ بہت ہی مطلب لمیٹڈ کر لی تھی. ظاہر ہے لیکن ہم صحافی ہیں, کوئی نہ کوئی کام, کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. اب میرے سمپٹمز یہ ہیں کہ 4 دن کے بخار کے بعد وہ بخار کا جو زور تھا وہ تو ٹوٹ گیا. میں ٹائرڈ ہو جاتی ہوں تھوڑا سا بات کرتے ہوئے, مجھے لگتا ہے کہ سانس ہلکا سا میرا پھولتا ہے. باقی مجھے فلو نہیں ہے, بٹ میں مائلڈ سا مجھے کف ہے اور بات کرتے ہوئے ذرا زیادہ ہوتا ہے. باقی آئی ایم ریسٹنگ, ایٹنگ اور اللہ تعالیٰ آپ کو, اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی صحت دے. تنزیل ایک چیز یہ بتائیے گا کہ چاہ رہی ہوں کہ ہے کرونا میں ہی دیکھیں ہم سب کو ہو گیا تو ہے اس کا مطلب ہے. بے شک یہ بتائیے گا کیونکہ آپ اسلام آباد میں ہیں اور اسلام آباد کی جو ہیلتھ اتھارٹیز ہیں, ظاہر ہے سب کو, یہ تو ایک گورنمنٹ کا ایک پورا سینٹرل نظام ہے جہاں پر جس صوبے میں بھی کسی کو ہوگا وہ رجسٹر ہوتا ہے. اس کے بعد ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جو صحت کی محکمہ ہے وہ آپ سے ان ٹچ رہتا ہے کیونکہ آپ لوگ گھر میں آئسولیٹ ہوئے ہیں. تو آپ سے کیا رابطہ روزانہ کرتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ نہیں, ایک گائیڈ لائن دے دی گئی تھی کیونکہ میں ایکچولی بیمار پہلے ہو گئی تھی, آئسولیشن میں بھی پہلے چلی گئی تھی کیونکہ میں اپنے گاؤں میں تھی اور عید کی چھٹیاں بھی تھیں. سو آپ کہہ لیجئے کہ 4 دن کی بیماری کے بعد میں ٹیسٹ کرانے آئی ہوں اور پھر وہ ٹیسٹ کی رپورٹ مجھے 3 دن کے بعد ملی ہے. تو 7 days پہلے سے جا چکے تھے اور میرے سمپٹمز بھی کافی حد تک امپروو ہو چکے تھے. تو مجھے ایک گائیڈ لائن دی گئی جنیرک سی, جس میں مجھے کہا گیا کہ یہ میڈیسن ہے یہ آپ نے لینی ہے, یہ احتیاط ہے جو آپ نے کرنی ہے, اور اگر آپ کو بریدنگ سے متعلق کبھی بھی کوئی کمپلیکیشن لگے اور آپ کو لگے کہ آپ کا بخار بہت زیادہ ہو رہا ہے تو آپ فوراً ہاسپٹل چلے جائیں. اوکے, لیکن ایز سچ ہیلتھ اتھارٹیز روزانہ یا ایک دن کے بعد یا 2 دن کے بعد ایسے کانٹیکٹ نہیں کرتی ٹو فائنڈ آؤٹ ہاؤ یو آر فیلنگ؟ جو لوگ ہاسپٹلز میں جا رہے ہیں نادیہ, جہاں تک میری انفارمیشن ہے, جو ڈائریکٹ جا کے چیک اپ کروا رہے ہیں, اچھا صحیح, یا جن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور جو لنگس کے پیشنٹ ہیں اسپیشلی وہ, یا جن میں کمپلیکیشنز ہیں, جو ہاسپٹل میں جا رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ بھی زیادہ لوگوں کا ہے. ان کی جو ٹریسنگ ہے کہ وہ کہاں کہاں کس کس سے رابطے میں تھے, اس کو بھی کافی بہتر طریقے سے فالو کیا جا رہا ہے, کیٹر کیا جا رہا ہے. جو مطلب فیسلٹیز ہیں, جتنی کیپیسٹی ہے اتنا تو کر رہے ہیں. صحیح. ڈاکٹر سعد خالد, I mean you're a doctor yourself and you had been informing about this. ایک خدشے کا آپ نے اظہار پہلے ہی کیا ہوا تھا. Having said that, ایک تو اپنی طبیعت بتائیے گا, اللہ کرے کہ آپ بھی in good spirits, in good health ہوں. دوسرا یہ فرمائیے گا کہ کیونکہ احتیاطی تدابیر آپ نے بھی اختیار کی یقیناً, اب جس تیزی سے پھیل رہا ہے, جو پچھلا آپ لوگوں نے مینشن کیا وہ ہو گیا جو ہونا تھا, کہاں ہم غلط ہوئے, اس وقت جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے واٹ آر یو لوکنگ ایٹ؟ تھینک یو نادیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل میں الحمدللہ ٹھیک ہوں. ہماری پروفیشن میں ہم بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں میڈیکل پروفیشن میں ہمارے لیے اس سے بچنا ممکن نہیں ہوگا. سونر اور لیٹر ہم ایکسپوز, کیونکہ میں کنٹینیوسلی اپنی انڈوسکوپک پروسیجرز کر رہا تھا. ہم نے حالانکہ کٹ ڈاؤن کر دیا تھا, ہم صرف ان لوگوں کو کر رہے تھے جن کو ارجنٹ کیئر کی یا ایمرجنسی کی ضرورت تھی, اور لیکن اس کے ظاہر ہے ہمارا رسک انڈوسکوپی کرنا از ون آف دا ہائی رسک پروسیجر. ہم اس کو ساری پریکاشنز لے کے کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی گارنٹی تو ظاہر نہیں ہوتی, اینڈ آبویسلی وہ کنٹینیو کرنا پڑتا ہے, اس کو آپ روک بھی نہیں سکتے. صحیح. تو دس از سم تھنگ دیٹ وی ور پریپیئرڈ فار, اینڈ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ مجھے ایسے کوئی میجر سمٹمس الحمدللہ نہیں ہوئے, اینڈ فار ناؤ میں گھر پہ ہوں اور گھر پہ ہی آئسولیٹڈ ہوں اپنے روم میں. اچھا. جو چیز تکلیف دہ ہے, جو چیز اب کرنے کی ہے, جس پہ میں زور دے رہا تھا کہ دیکھیں ہم تو جا رہے ہیں نا ہسپتال, ہمارے پاس چوائس نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ کم سے کم کل بھی اگر جو میں میٹنگ دیکھ رہا تھا اس کے بعد اسٹیٹمنٹس بھی, اس میں کم ایک لائن تھی کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ مشکل ہو رہی ہے ہیلتھ سروسز والوں کو. اس کے بعد وہ سیاحت پہ بھی بات ہوئی اور دیگر چیزوں پہ بات ہوئی. آج آپ نے کہا بس بھی کھل رہی. جی دیکھیں
बात नादिया ये कि जो मोरल है ना हेल्थ सर्विसेज का, आपको उसको अप रखना है। अच्छा, आप मुझे गवर्नमेंट से भी कोई साहिबा हैं यहाँ पे, तो मुझे ये बता दें कि क्या हमारी फैसिलिटीज एडिक्वेट थी? कभी भी नहीं थी ना, ये तो सबको पता है। सही। तो जब हमारी फैसिलिटीज एडिक्वेट नहीं थी, जिसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन हमने लॉकडाउन इसलिए किया था कि लॉकडाउन वुड हैव गिवन अस टाइम फॉर, जो कुछ महीने मिलते उसमें हम अपनी हेल्थ सर्विसेज को बीफ अप करते हैं, नॉट आइसोलेशन सेंटर्स, क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज। वो अनफॉर्चुनेटली ना फेडरल गवर्नमेंट ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, वो खाना पूरी होती है। आप अस्पतालों से डेटा मंगा लेते हैं, डेटा मंगा के उसमें पता चल जाता है इतने आईसीयू बेड्स हैं, इतने बेड्स क्रिटिकल केयर हैं, आपने उसको सारा को लिया, आपने कह रहे इतने इसको कर देना। फिजिकल असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दिस इज व्हाट वी हैव बीन सेइंग। एक चीज, दूसरा जो मोरल है ना मेडिकल पर्सनल, वेदर इट्स डॉक्टर, मेडिकल स्टाफिंग, सबका बहुत लो है। ये जो झगड़े फसाद लोग कर रहे हैं, इससे लोगों को अंदाजा नहीं है। लास्ट वीक वन हॉस्पिटल 18 मेडिकल पर्सनल रिजाइन, एक अस्पताल में। Now this is going to happen everywhere. We warned before about corona thing, we are warning government today that if you don't take serious action against ये प्रोटेक्शन के लिए आपने अगर नहीं लिया तो लोग, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ अस्पताल नहीं जाएंगे। आप ब्लेम भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जरा मैंने उज़मा कारदार साहिबा को भी पहले लूप इन कर लूं कि उज़मा साहिबा, आपने सुना हमारे दोनों कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, वन इज डॉक्टर साद खालिद नियाज, अदर इज तंजीला मजहर। ये देखें, कल जो फैसले अनाउंस किए गए और सब मिलकर ये फैसले ले रहे हैं, ये समझ से बाहर इसलिए है, बिल्कुल सही, आपने मईशत चलानी है, सब कुछ करना है, लेकिन जो फेज लॉकडाउन का था जिसमें आपको हेल्थ फैसिलिटीज को बीफ अप करना था, वो शायद उस हद तक नहीं बढ़ी, नोइंग द फैक्ट कि ये बड़ी से बड़े मुल्कों में भी नहीं सपोर्ट हो सके उनके एस हेल्थ सिस्टम, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत ही ज्यादा फ्रैजाइल सिस्टम्स हैं। ये बात कितनी दुरुस्त है जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि फिजिकल असेसमेंट बड़ी जरूरी थी। हम कितने भी नंबर्स देते रहे कि कितने वेंटिलेटर्स, कितने आईसीयू बेड है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी समवॉट डिफरेंट। नादिया, थैंक यू सो मच। एक तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी, आपने 2 कोविड पेशेंट्स को इनवाइट किया। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स हमारे फ्रंट फुट सोल्जर्स हैं एंड वी सैल्यूट देम। और तंजीला को भी मैंने सुना है, बहुत उनका पॉजिटिव एटीट्यूड था, और मेरे ख्याल में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोविड पेशेंट्स को लाना चाहिए ताकि लोगों को उनके एक्सपीरियंस से पता चले कि व्हाट दे हैव गॉन थ्रू। हैविंग सेड दैट, नादिया, बात सारी ये है कि ये पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा रिलीफ प्रोग्राम, कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम चल रहा है। इसमें हमारे एक प्रोफेशनल, सबसे टॉप ऑफ द लाइन डॉक्टर्स हैं, फैसल सुल्तान हैं, वो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ के एक्सपर्ट हैं, फिर आपके ज़फ़र मिर्ज़ा हैं, फिर उनके अलावा तमाम आपकी सूबाई जो हेल्थ टीम्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, ये सब इसमें कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में शामिल हैं। उनके साथ मिल के, उनसे मशवरा करके उसके बाद डिसीजंस लिए जाते हैं। डेटा कलेक्शन डेली बेसिस पे हो रहा है। देखिए, हमने 2019 में जब स्टार्ट लिया था, हमारे पास एक भी आइसोलेशन हॉस्पिटल नहीं था। इस वक्त हमारे पास हर जिले में एक आइसोलेशन हॉस्पिटल है। व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ, हमारे पास पीसीआर लैब्स गिनती की मेरे ख्याल में 5-10 भी नहीं थी। अब इस वक्त 70 हमारे पास पीसीआर लैब्स हैं पाकिस्तान में। फिर आप देखें कि टेस्टिंग कैपेसिटी हमने 30% अपनी बढ़ा ली है। और एक जिसे कहते हैं ना कि एवरी क्राइसिस हैज एन अपॉर्चुनिटी, खुद हमने अपने वेंटिलेटर्स बनाने की तरफ हम चल पड़े हैं, मास्क और टेस्टिंग किट्स और इस तरह की पीपीईज तो बेतहाशा अब हमारी बन रही हैं। कोई ऐसा हॉस्पिटल, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जहां से कोई शिकायत आ रही हो कि पीपीईज नहीं है हमारे पास। अब प्रॉब्लम ये है यानी कि पूरे पाकिस्तान की आप बात कर रही है कि पीपीईज, मतलब हर डॉक्टर के पास, हर पैरामेडिक के पास जो कि कोविड पेशेंट से डील कर रहा है, ऑल हैव दीज प्रोटेक्शन गियर्स विद देम। जी, बिकॉज ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है, ये एनडीएमए के थ्रू हो रही है, फेडरल लेवल पे हो रही है। कराची से जो शिकायत मिली थी कि जी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स को नहीं पहुंच रही हैं सिंध गवर्नमेंट के थ्रू, तो फिर एनडीएमए ने उनको डायरेक्ट भी पहुंचाई हैं, और इसी तरीके से वो जरूरत के मुताबिक बाकी तमाम सूबों को भी एक बैलेंस करके ये तमाम चीजें जो हैं वो
पहुंचाई जा रही हैं। नादिया, आप ये ना समझें कि किसी को इदराक नहीं है या नजर नहीं रखी हुई है या वहां पे वो सो रहे हैं, ये मिनट टू मिनट एक जिसे कहते हैं ना रेस लगी हुई है और मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग हो रही है। तमाम केसेस जो हैं, देखें जिस तरह प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि WHO की पहले एडवाइजरी पे पूरी दुनिया चल रही थी, अब WHO ने जो है अपनी एडवाइजरी खुद चेंज कर ली है, क्योंकि वुहान में फिर दोबारा केसेस भी आए हैं, साउथ कोरिया में भी दोबारा आए हैं। तो उन्होंने कहा है लोगों को कि जी अब आपको इसके साथ जिंदा रहना सीखना पड़ेगा, लेकिन मकामी कम से कम आपको साल डेट के लिए। अब उसके लिए देखें, अब उसके लिए नादिया हमें अपना माइंडसेट, अपना बिहेवियर पैटर्न, हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो मेरा सवाल यही है उस्मा, यही मेरा सवाल है कि ठीक है आपने मईशत को चलाना है, सब चीजों को खोलना है, जाहिर है हुकूमतें हर चीज को साथ लेकर चलती हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि पूरे मुल्क को आप बंद कर दें और लोगों को घर में कर दें, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। बट हैविंग सेड दैट, वो जो एहतियाती तदाबीर जिसका दर्स जो है वो सब के सब बैठ कर देते हैं, उन पर अमल दरामद करने के लिए कौन सी फोर्स आएगी, इस पर बात कर लेते हैं राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। क्योंकि अब बात यह है कि मकामी मुंतकली अगर 92% तक है, अब इसको कंटेन कैसे किया जाए। अपने तीनों मेहमानों से पूछूंगी, बताएं कि उनके नजदीक क्या होना चाहिए। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम में 2 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हमारे साथ हैं। एक है तंजीला मजहर साहिबा, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉक्टर खालिद नियाज हैं, वेरी वेल नोन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असेंबली की मेंबर उज़मा कारदार साहिबा हैं। तंजीला, वेरी क्विकली आईड लाइक यू टू कॉमेंट ऑन दिस। आप क्या समझती हैं? ठीक है मईशत भी खुल रही है, सब कुछ साथ साथ चल रहा है, लेकिन क्या आप नहीं समझती कि SOPs पर अमल दरामद कराना फिर हुकूमतों की, सारी सूबाई हुकूमत और विफाक की अब ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर हम सब कुछ खोल रहे हैं तो मकामी मुंतकली को किसी हद तक अब कंटेन करें, और क्या ये स्ट्रैटेजी कहीं नजर आ रही है आपको? देखिए, अगर तो कौमी सतह पर कोई मरबूत हिकमत अमली होती और एक इत्तफाक राय होता बयानात में, मरकजी हुकूमत कुछ कह रही है, पंजाब की हुकूमत कुछ कह रही है, सिंध की हुकूमत कुछ कह रही है, और उसमें जो सही भी कह रहा था उसके साथ इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस अटैच हो गई कि लोग उसको सीरियस नहीं ले रहे। हमेशा जो कौमें, अगर न्यूजीलैंड को हम देखते हैं तो वहां पर एक हायरार्की है, एक फैसला हुआ और फिर सारी जमातों ने, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, सारे लोगों ने, हर शोबे ने उसको फॉलो किया। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम एक ऐसी हमेशा से कौम रहे हैं कि हम हर चीज़ में साजिश ढूंढते हैं, हर चीज़ में हम यहूदियों को पता नहीं ब्लेम करना चाहते हैं, हर चीज़ अमेरिका की साजिश और पता नहीं क्या है। सो इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई, क्योंकि वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो नेशनल लेवल के ऊपर एक कंसेंसस होना चाहिए था, एक बहुत फर्म मैसेज होना चाहिए था, और लोगों को ये रियलाइज करवाने की ज़रूरत थी कि भाई ये खतरा है और आपने ये SOPs पे अमल करना है, और हम भी कर रहे हैं और आप भी कीजिए। यहाँ पे किसी ने बहुत खतरनाक है, किसी ने कहा नहीं है खतरनाक, किसी ने कहा डरना है, किसी ने कहा नहीं डरना नहीं है लड़ना है, किसी ने कहा लड़ने की भी जरूरत नहीं है, डरने की भी जरूरत नहीं है। सो उन सारी चीजों के बाद ये हुआ कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाला, वो जो डिस इन्फॉर्मेशन का एक समंदर था ना, वो बहना शुरू हो गया। फेसबुक के ऊपर एक से बढ़ के एक जहालत। मैं टेस्ट कराने जा रही थी तो मेरी अम्मा को किसी ने कहा, एंड माई मदर इज एन एजुकेटेड लेडी, 2 मास्टर्स उन्होंने किया है, अभी वो प्रिंसिपल रिटायर्ड हुई है। उनको किसी ने कहा, वो बड़े किसी अच्छे इदारे में काम करते हैं साहब पिंडी में, तो उन्होंने कहा कि टेस्ट के लिए नाम भेजे, आपको पता है कि वहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं कि लंग्स जो है ना वो बिल्कुल फारिग हो जाता है। ठीक है, तो मतलब एक से बढ़ के आप सही कह रही हैं, और ये आप बिल्कुल सही आपने ये निशानदेही की कि एक जो मरबूत नेशनल लेवल से शुरू होती है और एक बयानिया होता है, आपको एक नैरेटिव चाहिए होता है ना, इस तरह की वबाओं से, इस तरह की मुसीबतों से, इस तरह के मसाइल से निपटने के लिए यू नीड वन नेशनल नैरेटिव। वो नैरेटिव नहीं है, तो क्या अभी तक नहीं बना? वो अभी तक नहीं बना, तो इसका मतलब 92% पे डॉक्टर साहब हम मुंतकली पर चले गए हैं, लोकल ट्रांसमिशन। सो क्या ये उरूज है इस वक्त कोरोना का? वी हैव हिट दैट एंड नाउ वी आर वेटिंग कि खुद ही सब कुछ सही हो जाएगा और कर्व भी फ्लैटन हो जाएगा। मेजॉरिटी द पीपल से दैट उरूज अभी आना है, दिस इज नॉट, अभी यहाँ वहाँ हम नहीं पहुंचे। अल्लाह करे कि हम, अल्लाह ताला हम पे कोई रहम करे। आपको याद है नादिया, पहले ये कहा गया था कि गर्मी में नहीं होगा ये, हमने पीक किया है, आज 46 डिग्री था नवाबशाह में, ठीक है, कराची वॉज 39-40, आई डोंट नो कितना था। तो फिर कहा गया कि जी इम्यूनिटी हमारी बहुत स्ट्रांग है, हमें तो कुछ नहीं होगा। सही। देखिए मसला बिल्कुल जो मैं उनसे एग्री करता हूँ कि हमारी एक
तंजीला ने बिल्कुल सही कहा, हमारी लीडरशिप ने एक बयान ना दे के इस कौम के साथ जुल्म किया। उनको एक बयानिया होना चाहिए था, और वो बयानिया ये होना चाहिए था कि आपको अपने आप को बचाना है। हमारी हेल्थ सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है, जो भी हैं हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हम अपनी तरफ से सब कुछ करेंगे, लेकिन देखें हम इतनी बड़ी मुसीबत को नहीं झेल सकते। आपने अपने आप को, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मुसीबतें आएंगी। बट प्राइम मिनिस्टर जब बात करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक सांस में कहा कि देखें मैं आपको पहले ही बता रहा था ये बढ़ जाएगा और अमवात बढ़ेंगी, दूसरी सांस में हमने सुना कि सयाहत खुल जाएगी। तो अगर एक ऑर्डिनरी आदमी सुन रहा है वो कहेगा इट कांट बी टू सीरियस यार, एक तरफ वो टूरिज्म खोलने जा रहे हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं सीरियस, तो थोड़े लोग मर जाएंगे तो मर जाए, 10-5 हजार लोगों से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप परसेंटेज निकालें, देखें जब भी ये लोग बात करते हैं बेड्स की, मैंने इसीलिए आपसे कहा मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, जो गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव हैं, पीपीईज का मतलब ही ज्यादातर लोगों को नहीं पता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपीईज N95 मास्क। आप टीवी को निकाल के देखें, सबसे ज्यादा N95 जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास होते हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स मुझे दिखा दें आप तस्वीरें जितनी देखी हैं जिन्होंने N95 पहना हो। रेगुलर मास्क इज नॉट गुड इनफ व्हेन वी हैव सच हाई prevalence now and also incident। तो इतने तो N95 मास्क के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सब में तो बढ़ गए, फिर वो कहाँ चले गए? कहाँ है वो? कहीं नहीं है जी। वो सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ही मैं देखता हूँ जब भी वो जाते हैं विजिट करने, चाहे वो किसी भी हुकूमत किसी भी सूबे से हो। आई एम नॉट बीइंग पर्टिकुलर अबाउट वन पॉलिटिकल पार्टी और अनदर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पीपल ऑफ पाकिस्तान। यानी एलीट्स एंड पावरफुल पीपल हैव इट। देखिए, and the sad thing is when I was talking yesterday, I said कि उन्होंने कहा जी बेड्स हैं कराची में। Let's talk about सिंध जी, कराची की बात कर लेते हैं। कराची में भी बेड्स हैं और लाहौर में भी आज उन्होंने कहा बेड्स हैं। कहाँ बेड्स हैं? किंग एडवर्ड हॉस्पिटल में बेड्स हैं, सिविल अस्पताल में, लियारी में अस्पताल में। आप मुझे बताएं लाहौर और कराची की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन क्या सिविल हॉस्पिटल और केई से इलाज कराती है सिर्फ? बाकी जो पब्लिक जो हेल्थ फैसिलिटीज थी उनके बारे में 4 महीने में क्या किया गया था? सही। जो बाकी लोग हैं वो क्या सारे सिविल अस्पताल जाएंगे? नादिया, इफ आई नीड टू गो टू द हॉस्पिटल, या और कोई जो लोग हैं वो सारे सिविल अस्पताल ही सिर्फ जाएंगे? और आपको गवर्नमेंट अस्पताल की हालात आपको पूरे पाकिस्तान में पता है। बिल्कुल रियलिस्टिक होना चाहिए, बजाय इसके कि हम देखें। बात सारी यही है कि एहसास और एक्सेप्टेबिलिटी हमने ना, आई एम सॉरी बट इनके एक्शन से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एहसास की भी कमी है और एक्सेप्टेबिलिटी तो है नहीं। जैसे कि हम, आफ्टर ऑल आप कह रही हैं जी लॉकडाउन से कुछ नहीं होता, लॉकडाउन टाइम बाय करता है। उस टाइम में हमने ऐसी कोई, आप कह रही वेंटिलेटर, वेयर आर द वेंटिलेटर्स वेयर वी वर गोइंग टू एक्सपोर्ट वेंटिलेटर्स? वो कहाँ है एक्सपोर्टिंग वाले वेंटिलेटर्स? कहाँ आए वेंटिलेटर्स? लेकिन हमने इंपोर्ट तो इतने सारे कर लिए। एनडीएमए के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी हाफ भी हमने यूज नहीं किए हैं। बाबा वो कहाँ है वेंटिलेटर्स? देना लोगों को। अच्छा। मैं तो आपको कह रहा हूँ कराची ठीक है। मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज है, इसलिए उस्मा आप इस पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एक ब्रेकिंग न्यूज के बाद हम वापस आते हैं और उस्मा आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा कि ये जो एक मुस्तकिल बात है कि डॉक्टर्स कहते हैं अवेलेबिलिटी नहीं है, हुकूमती नुमाइंदे कहते हैं कि सब मौजूद है, इसके बीच में कहाँ हम सेटल कर सकते हैं कि एक्चुअल में क्या कुछ मौजूद है और क्या कुछ की जरूरत है? अब वेलकम बैक। उज़मा कारदार साहिबा, डॉक्टर साद खालिद न्याज और तंजीला मजहर साहिबा हमारे साथ हैं इस गुफ्तगू में। उज़मा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, डॉक्टर साद ने बताया कि देखें जो PPE का जिक्र होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट N95 है, जो कि अक्रॉस पाकिस्तान अवेलेबल डॉक्टर्स में नहीं है, पावरफुल लोगों के पास, पैसे वालों के पास हमें ज़रूर नज़र आता है। देखिए डॉक्टर साहब जो है, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन ये ऐसे इनका ट्रस्ट डेफिसिट इतना सिवियर है कि ये समझते हैं कि हुकूमत में सवाए जो है वो गलत डिस्ट्रीब्यूशन के और गलत लोगों के हाथों में जो है वो हर इक्विपमेंट जा रही है। ऐसी बात नहीं है। आपकी NDMA जो है और PDMA हर सूबे में जो है, सारी जितनी भी शिपमेंट्स आ रही हैं बाहर से या अपने मुल्क में भी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सब पहले उनके पास आती हैं। आप समझते हैं क्या वो सारे करप्ट लोग बैठे हुए हैं वहां पे कि किसी को, वो डॉक्टर को वो नहीं दे रहे हैं? अगर कोई अफसर वगैरह ले रहे हैं तो वो गलत काम है, उनको नहीं ऐसे करना चाहिए। और डॉक्टर
डॉक्टर जफर मिर्जा कई दफा कह चुके हैं अपने प्रेसेस में कि खुदारा एक आम इंसान को N95 पहनने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर्स जो कोरोना पेशेंट्स को लुक आफ्टर कर रहे हैं, ये अव्वल उनको पहुंचना चाहिए। ठीक है। मैं तो डॉक्टर साहब से पूछती हूँ कि ये कह रहे हैं कि आप इस वक्त आपके मुल्क में हेल्थ इमरजेंसी है, आप डॉक्टर साहब आपने क्यों नहीं पहले कभी आपने हुकूमतों से पूछा कि क्यों सिर्फ बजट का 1% इन्होंने सेहत के लिए हमेशा दिया, डिप्लॉय किया है? इसको हमारे पास एक मिनट, ये जरूर उस्मा एक चीज है नहीं। उस्मा एक चीज बताएगा कि आपके हॉस्पिटल्स के क्या हालात है? उस्मा मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, जाके अपना इलाज कराते थे, उनको तो फिक्र फाका था ही नहीं पाकिस्तान में मेरी बात कराने का। उस्मा ये बातें बिल्कुल इसका जवाब ले लेंगे, लेकिन आप पंजाब असेंबली की मेंबर हैं, फील्ड में भी जाती हैं, आपने खुद देखा कि कितने डॉक्टर्स आपको पहने नजर आ रहे हैं, कितने लोग जो कि कोविड पेशेंट्स को डील कर रहे हैं वो N95 पहने हुए? देखिए, मैं डॉक्टर रिजवान से इन टच हूं और उन्होंने मुझे बताया है कि अब हमारी जो पीपीईज हैं वो सारे पहुंच चुकी हैं। देखें, हर एक को वो नहीं मिल सक रही, सिर्फ वो उन लोगों को, उन डॉक्टर्स को उन वार्ड्स में जाती है जहां पे कोरोना पेशेंट्स जो हैं उनकी ट्रीटमेंट हो रही है। इसीलिए पहले आपने देखा कि ओपीडीज को बंद कर दिया गया था, क्योंकि वहां पे ठीक है सबको नहीं मिल रही। ओके चलिए, आपने अच्छा किया ये बता दिया, सबको नहीं, जो कोविड पेशेंट से डील कर रहे हैं आप उनको दे रहे हैं। लेकिन अब सेकंड चीज बताएं कि क्या ये दानिशमंदाना फैसला है कि पहले आप तरगीब कर देते हैं कि मजमे ना इकट्ठे करें और फिर आप लोगों से कहते हैं और गैर जरूरी ना निकलें बाहर और फिर कहते हैं कि घूमने के लिए हम टूरिज्म खोल देंगे? इज इट राइट? नादिया, आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। आपके 25% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं और मजीद 25% 2.5 करोड़ और दिहाड़ीदार और वीकली बेसिस पे जिनके चूल्हे जलते हैं वो भी इस वक्त फाका कशी पे आ गए हैं। जिन इलाकों की बात की गई है, जो प्राइम मिनिस्टर ने गलियात की बात की, गिलगित बल्तिस्तान की बात की, वहां के जो लोकल्स हैं उनकी पूरी साल की कमाई इन 3 महीनों पे में होती है। अगर इन 3 महीनों में आप वहां पे लोकल बाय रोड जो पाकिस्तान के अंदर ही अगर आप उनकी जो टूरिज्म एसओपीज के साथ, माइंड यू कोई चीज एसओपीज के बगैर नहीं होगी। अगर आप हर चीज एसओपी के बगैर हो रही है, आप मुझसे ज्यादा जानती हैं। पूरा लाहौर देखा होगा आपने कि क्या हुआ उस ईज ऑफ लॉकडाउन में, पूरे पाकिस्तान में देख लें क्या अमल दरामद करवा रहे हैं आप लोग एसओपीज पर। दिस इज अ सेंस ऑफ इररिस्पांसिबिलिटी। व्हेन वेयर इज द गवर्नमेंट, बार-बार कह चुके हैं कि हमको एज अ कॉम देखें, यूरोप में जो मास्क नहीं पहनते थे या घर से इजाजत के बगैर निकलते थे वो 1000 यूरो फाइन लगाते थे। तो आप लोग भी लगाए ना, कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं कर सकते? जब आप उन्होंने तो भाई गवर्नेंस कौन करेगा? उस्मा गवर्नेंस कौन करेगा? दिया गया है, मास्क मैंडेटरी कर दिया गया है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पे, हमारे डॉक्टर्स पे पहले ही बहुत बोझ है, इसीलिए ये जो अब वॉलंटरी फोर्स प्राइम मिनिस्टर की कोविड फोर्स है, इनका अब जिम्मा लगने लगा है कि ये अवेयरनेस पैदा करें। जो लोग एसओपीज नहीं फॉलो कर रहे हैं उनको फिर उनका जो है सारा एडमिनिस्ट्रेशन को उसकी इत्तला दी जाएगी। अच्छा सही, और उनको फिर फाइन और जुर्माने किए जाएंगे। अच्छा, ये फाइन और जुर्माने के लिए जाहिर है कि आपको एक पूरा एक निजाम होता है, इसके लिए एक अप्रूवल होता है, वो कब हम आपको कब लाएंगे उस्मा? जब मतलब लुक वेयर द केसेस आर गोइंग। देखिए, इस्लामाबाद में ऑलरेडी ये पास हो गया है। अच्छा। आपके केपी में ये पास हो गया है। उन्होंने भी कहा है कि मास्क जो है वो मैंडेटरी है, घर से बाहर निकलेंगे तो उसके बगैर आप नहीं जाएंगे। अब पंजाब में भी इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगा। लेकिन हमें देखें, हमें जिस तरह नमाज रोजा फर्ज है, हम लोगों को खुदारा एहतियात जो है लाजिम करनी है अपने ऊपर। वो लाजिम के लिए 1.5-2 साल कोई वैक्सीन नहीं है, कोई और तरीका नहीं है इससे बचने का। Now here comes one thing. आपने कहा केपी के अंदर भी मैंडेटरी करार, डीसी इस्लामाबाद भी ये कई दफा कह चुके हैं, हमारे यहाँ भी कई दफा है कि मैंडेटरी है सिंध में भी कि कोई नहीं निकलेगा, लेकिन हर कोई मास्क के बगैर ही निकलता है। अच्छा, फिर आप मुझे नादिया बताएं, आपने जेल भर लें, फिर जेलों में कोरोना कर लें। ये तो बड़ी अजीब बात है। मईशत चला लें, कोरोना फैला लें, कोरोना के मतलब जेलें भर दें या कोरोना फैला लें। आई मीन देयर मस्ट बी समवेयर कोई एक तो रास्ते में आना होगा। हमारी कैपेसिटी नहीं है। जी बिल्कुल, हमारी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। चले, मैं वो जो 1200 अरब थे वो खत्म होने को आ गए हैं। 12,000 जो इतने करोड़ों लोगों को मिले, अब और 2 महीने तो लॉकडाउन किया, अब उसके बाद नहीं है रिसोर्सेज। लोगों को रोजगार आपको देना पड़ेगा। मतलब प्राइम मिनिस्टर फंड जो जमा किया था वो भी सब खर्च हो गया है।
देखें गैलप पोल किया गया है, हर 5 घरों में से एक घर में उन्होंने कहा हमने खुराक अपनी कम कर दी है। 1,80,00,000 लोगों की नौकरियां चली गई हैं। बिल्कुल सही कह रही है, ये भी 1.3 पे आ गया है। वेरी क्विक ब्रेक के बाद तंजीला और डॉक्टर साद आप इसके ऊपर कीजिएगा। ये भी हकीकत है जो उस्मा ने कहा है कि बिल्कुल लोगों की जॉब्स भी जा रही हैं, लोग फाका कशी पर भी हैं, लोगों ने कम खाना और बहुत अपने आप को कर्टेल किया है। बट हैविंग सेड दैट, कहीं तो कोई गवर्नेंस होगी, अगर वरना एसओपीज पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर तो हम कहां जाएंगे? फिर तो वाकई ये अभी उरूज नहीं है जैसे कि बहुत से लोग कह रहे हैं और डॉक्टर साद ने भी कहा, फिर तो पता नहीं उरूज क्या होगा। अल्लाह रहम करे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। तंजीला मजहर साहिबा, उस्मा कारदार साहिबा, डॉक्टर साद खालिद नियाज हमारे साथ हैं इस गुफ्तगू में। तंजीला, आपने उस्मा की बातें सुनी कि बहुत सारी मुश्किलात हैं और बिल्कुल हम मानते हैं ये मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन क्या एसओपीज पर अमल दरामद करने के लिए भी ये क्यों तासुर है कि हर चीज़ पर से हुकूमत हाथ उठा लेती है? नमाजी ज़रूर जाएंगे इसलिए हम मस्जिदें बंद नहीं करेंगे, हम उनको एसओपीज बता दिए हैं लेकिन हम किस तरह से उनसे फॉलो कराएं? ये तो ह्यूमन साइकी है। अगर आप रेप्रिमांड नहीं करते किसी को तो वो तो अपनी मर्जी करेगा। फिर देखें, जो इन्फोर्समेंट होती है ना, वो रियासती इदारों की जिम्मेदारी होती है। और यहाँ पे जितने भी रियासती इदारे, चाहे वो एनडीएमए है, चाहे वो हुकूमत है, मतलब ये किसी पे एहसान नहीं कर रहे। इन्होंने अपने शौक से सियासत चुनी है और अपने शौक से ये हुकूमत करने आए हैं। लोगों ने इनको वोट दे के जिम्मेदार बना के यहाँ पे इनको बिठाया गया है। मतलब ये कोई हनीमून पीरियड तो है नहीं कि आप कहेंगे ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते। कमजोरी ये है कि आप कहीं पे भी इन्फोर्समेंट करना नहीं चाहते। करना क्यों नहीं चाहते? आपके पास विजन नहीं है। विजन क्यों नहीं है? उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। आप मौलवियों से भी डरते हैं, आप नमाजियों से भी डरते हैं, आप इस बात से भी डरते हैं। ज़ाहिर है मईशत तो हमारी कोरोना से पहले भी बहुत बुरी थी। हमारे यहाँ घरों में चाहे आप अगर फूड सिक्योरिटी के डाटाबेस को देखें, आदाद शुमार देखिए, आप फूड सिक्योरिटी में भी हम बहुत रिस्क पे हैं। हमारे यहाँ जो मैल न्यूट्रिशन के इश्यूज हैं वहाँ पे भी आदाद शुमार बताते हैं। हम कोई बहुत खाते पीते लोग कभी भी नहीं थे। तो लोग अब ये बात कहना कि लोग तो वैसे भी मर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब इस तरह के क्राइसिस आते हैं तो हुकूमतें, रियासतें और मुआशरे उसमें से कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। और वो अपॉर्चुनिटी आप तब ढूंढते हैं जब आपके पास विजन हो कि आपने इस मुआशरे को किधर लेके जाना है। हुकूमत की जानिब से जितने भी हुकूमत के लीडर्स हैं, पीटीआई में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सुलझे हुए लोग हैं, बहुत रीजनेबल लोग हैं जिन्होंने बड़ी एफर्ट की है हमेशा और बड़ी रीजनेबल और साइड बातें करते हैं। और इमरान खान साहब की फॉलोइंग जो है वो अनडाउटेडली अभी भी उतनी है जितनी जब उन्होंने धरना शुरू किया था उस वक्त थी। तो आपके पास जब ये फॉलोइंग भी हो और लोगों का ट्रस्ट भी अनशेकन है आपके ऊपर, तो आपके पास तो ज्यादा बेहतर मौका है। फिर हमारे यहाँ जो हमेशा से क्राइसिस होता था जी कि फौज और सिविल हुकूमत जो है वो एक पेज पे नहीं है, इस दफा इसका भी नहीं है, सारे एक पेज के ऊपर है, एक पेज है और जिम्मेदारी इनको फॉलो करनी पड़ेगी। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? व्हाट नीड्स टू बी डन और अमल दरामद कैसे कराएं एसओपी पर? देखिए, पहली चीज तो ये है कि अगर हुकूमती नुमाइंदे, यहाँ पे सिंध में कहा गया, गवर्नर साहब ने कहा कि ये फ्लू है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद उनका स्टेटमेंट आया कि लॉकडाउन जो है ना वो सिर्फ अमीरों का एक शोशा है। उसके बाद अभी एक एमपीए ने कहा कि ये तो सिंध गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से टेस्ट पॉजिटिव करके इशू बना लिया। ये चीज़ें सियासत करने की नहीं है। मैं आपको, मेरे हिसाब से जो चीज़ ज़रूरी है करना वो दो चीज़ें हैं। एक तो कौम को इस बात को बताना, ये किसी का क्रिटिसिज्म नहीं है, ये फैक्ट है। हमने हेल्थ सर्विसेज पे नहीं डाला पिछले 60 साल में, कुछ नहीं, किसी चीज़ में नहीं लगा इस मुल्क में। द पॉइंट इज कि उसको एक्सेप्ट करना है और लोगों को बताना है देखें हम नहीं हैंडल कर सकते, बजाय इसके कि हम ये कहें कि नहीं अभी तो हमारी से 27% फैसिलिटी अफेक्टेड हुई है, आप फिक्र नहीं करें। ये नहीं, ये अगर आप बताएं लोगों को एक ज़बानों के फ्रॉम कराची टू खैबर कि इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम, हम इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकते, अगर आपने मास्क नहीं पहना, डिस्टेंसिंग नहीं की तो फिर आप खुद पछताएंगे, आप खुद मुसीबत में होंगे, हमारी फैसिलिटीज स्ट्रेस्ड आउट है। नंबर 1। नंबर 2, जो इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है वो हेल्थ की सर्विसेज की ज़रूरत है। हेल्थ सर्विसेज बहुत मुश्किल में है। अभी तक कोई स्टेटमेंट सिक्योरिटी के लिए नहीं आई है। 3 दिन 5 वाक़यात 6 वाक़यात बड़े बड़े हो चुके हैं, उसके ऊपर फॉरेन अनाउंसमेंट होना चाहिए। नंबर 2, आपकी फाइनेंशियल, अभी मैं आपको बताऊं जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो 20-25% पे ऑपरेट कर रहे हैं। आपने लोन्स का सिस्टम दिया था ना बाकी बिजनेसेस को, आप हॉस्पिटल्स को लोन्स का बिजनेस दें, ट्रस्ट हॉस्पिटल्स को भी और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, ताकि वो आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फैसिलिटीज को शेयर करें, उनको आप एनकरेज करें। अभी भी वक्त है
تاکہ وہ اس میں لوگ, کیونکہ جب ڈاکٹرز کی, جونیئر ڈاکٹرز کی میں بات کر رہا ہوں, اور پیرامیڈیکل سٹاف کی سیلریز کٹیں گی جو کہ ہر ہسپتال میں کٹ رہی ہیں آلموسٹ, پرائیویٹ اینڈ ٹرسٹ اینڈ نان پروفٹ میکنگ, تو پھر وہاں سے مورائل ڈاؤن ہوگا, اس پہ جھگڑے بھی ہوں گے اس پہ. اس کے علاوہ بٹ پنجاب حکومت نے تو ایکسٹرا دی نا ڈاکٹر صاحب, انہوں نے تو ایک انسینٹیو دیا. ان دا گورنمنٹ سیکٹر نا جی, گورنمنٹ سیکٹر کا آپ مجھے بتائیں کتنا پرسنٹیج کراچی, لاہور, پشاور میں گورنمنٹ سیکٹر کا, پرائیویٹ سیکٹر نیڈز ٹو بی گیون انسینٹیو, ایزی لونز, اینڈ اس میں 3% لون ہے. 3% لون میں سمجھتا ہوں ہاسپٹل گورنمنٹ اپنی طرف لے لے, اٹس ناٹ اے بگ اماؤنٹ. لون ہاسپٹل اپنی طرف سے انٹرسٹ, بات ختم ہو جائے گی, اور ان کو سپورٹ کرے فائنینشیل. اس طرح سپورٹ ہوگا, یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ پیسے بانٹنے شروع کر دیں, لون دے دیں, تاکہ یہ جو کرنٹ باقی نان گورنمنٹ ہاسپٹل کی فیسلٹیز ہیں وہ بھی چلتی رہے. لیکن فرسٹ اینڈ فورموسٹ از دا سیکورٹی. انفارچونیٹلی ٹائم ختم ہو گیا. عظمیٰ صاحبہ نے بالکل صحیح کہا کہ بہت ساری چیزیں, ظاہر ہے نو بڈی از سیئنگ کہ گورنمنٹ از ناٹ سیریس, آپ لوگ اپنے تہی سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن بہت ساری ایسے سجیشنز ہیں جو ہمارے ان کووڈ پیشنٹس نے بھی دیے ہیں. ون ایز ون فرام دا ڈاکٹر کمیونٹی, کہ جو اس وقت ڈاکٹرس کو سیکورٹی کی بے حد ضرورت ہے. دوسرا SOPs پر عمل درآمد, اور ایک زبان ہو کر ایک قومی بیانیہ جو سب لوگ اس کو فالو کریں, اس بات کو یقین کریں کہ ہاں کرونا ہے. دوسری بات یہ, اس سے بچنے کے لیے SOPs پر عمل درآمد اگر نہیں کیا گیا تو اس کے پھر بہت سے طریقہ کار ہو سکتے ہیں, اور دنیا میں یہ ہیومن سائیکی ہے کہ جب تک آپ ان کو لازم نہ کر دیں, اس کے اگینسٹ کوئی فائن نہ رکھ دیں, لوگ اپنی منمانی ضرور کرتے ہیں. اب بھی وقت ہے, ہم بہت چیزوں سے اور بہت بڑے بڑے ڈیزاسٹر سے بچ سکتے ہیں اگر احتیاطی تدابیر اختیار کریں. اپنے ان دونوں پیشنٹس کے لیے بھی دعا کرتے ہوئے, اور ان تمام لوگوں کے لیے جو کرونا میں مبتلا ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے, مکمل صحت عطا فرمائے, آمین, اور ہم سب کو بچائے رکھے. تھینک یو فار جوائننگ اس. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں کل حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.